Hello friends, welcome to the medical microbiology and immunology class. In this video tutorial, we will talk about the selective toxicity of different kind of the antimicrobial drug, what is and the bioavailability, MIC, minimum inhibitory concentration, MBC, minimum bactericidal concentration, and the LD50. Here is the first selective toxicity. The selective toxicity of antibiotic means that they must be highly effective against the microbe but have minimal or no toxicity to humans. There are the certain kind of the drugs which shows the toxic effect onto human body. So we must find out the selective toxicity of that particular drug which will we design. हमने जो भी ड्रग डिजाइन किया है उसकी हमें सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी पता होनी चाहिए, यानी कि हमने एक कोई पर्टिकुलर ड्रग बनाया तो वो ड्रग सिर्फ वो पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होना चाहिए, ना कि ह्यूमंस के अगेंस्ट। अगर आपका ड्रग ह्यूमंस पे ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट बताता हो और माइक्रोब पे कम बताता हो तो फिर ऐसा ड्रग कोई काम का नहीं। ठीक है। इन प्रैक्टिस दिस इज एक्सप्रेस बाय ड्रग थेराप्यूटिक इंडेक्स। प्रैक्टिस के अंदर इसे ड्रग थेराप्यूटिक इंडेक्स कहा जाता है। और क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स? द रेशियो ऑफ द टॉक्सिक डोज टू द पेशेंट to the therapeutic dose to eliminate the infection. Okay, so the larger the index, the safer the drug for human use. The selective toxicity of antibiotic is brought about by finding vulnerable targets for the drug in the microbe that do not exist in the animal eukaryotes that is given the drug. आपने जो भी ड्रग फाइंड आउट किया है तो आपको वो माइक्रोब का एक ऐसा स्ट्रक्चर टारगेट करना पड़ेगा जो कि सिर्फ वो माइक्रोब के अंदर ही होना चाहिए, वो एनिमल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो एनिमल के अंदर है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आप माइक्रोब पे भी अटैक करेगा और एनिमल सेल पे भी अटैक करेगा। तो आपको एक ऐसा टारगेट ढूंढना होता है कि जो सिर्फ आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो और जो भी होस्ट हो उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से इसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी और भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मोस्ट एंटीबायोटिक्स इन clinical usage are directed against bacterial cell wall synthesis, bacterial protein synthesis, or bacterial nucleic acid synthesis, which are unique in some way to bacteria. For example, the beta-lactam antibiotics penicillin and its relatives, they inhibit the peptidoglycan synthesis in the cell wall. If you see the most of the bacterial drugs, they are generally designed against the bacterial cell wall or even the bacterial protein synthesis, even the bacterial nucleic acid synthesis, because the proteins which is used in all these processes, they are unique, they are only present in the prokaryotic system, and therefore if you see the example of beta lactam antibiotics like the penicillin, they target a transpeptidase enzyme which is responsible for the cross linking of the NAG and the NAM ratios in between the two walls. Okay, so this transpeptidase enzyme is only found in the bacteria, it not found in the eukaryotic organism, and therefore if we give the treatment of any animal with the penicillin, so it only responsible for the blocking of cell wall synthesis of bacteria, not the animal. Now, what are the characteristics of the antibiotics? It should have a wide spectrum of activity with the ability to destroy or inhibit many different species of pathogenic organism. It should be non-toxic to the host and without undesirable side effects. उसका कोई भी side effect नहीं होना चाहिए और ना ही होस्ट पे इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी नॉन एलर्जन टू द होस्ट, एलर्जिक इफेक्ट्स भी नहीं बताने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को किसी किसी ड्रग्स की एलर्जी होती है तो फिर वो स्किन पे रैशेस आते हैं या फिर स्नीजिंग होती है, तो अलग अलग एलर्जिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ऐसा ड्रग डिजाइन करना होता है जो कि नॉन एलर्जिक भी हो। इट शुड नॉट इलिमिनेट द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द होस्ट, उसने नॉर्मल फ्लोरा को इनिबिट नहीं करना चाहिए। यानी कि सपोज आपने पेनिसिलिन की ट्रीटमेंट तो दे दी, लेकिन अब हमारी गट के अंदर नॉर्मल फ्लोरा भी है जैसे कि ई कोलाई रहता है, ठीक है, तो फिर वो उसकी भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। तो आपको कम से कम नॉर्मल फ्लोरा फिर अफेक्ट करने वाला क्या ढूंढना होता है, ड्रग ढूंढना होता है। इट शुड बी एबल टू रीच द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर द इन्फेक्शन इज अकरिंग, टारगेट साइड पर उसने अचीव करना चाहिए। इट शुड बी inexpensive and easy to produce. It should be chemically stable which have the long shelf life.
and the microbial resistance to the uncommon and the unlikely to development. Here are the some kind of the antibiotics and their examples with respect to their biological source and the mode of action. So this is the beta-lactam antibiotics such as the penicillin and the cephalosporin. Example is the penicillin G and the cephalothene. What are the biological sources? Penicillin G is produced from the Penicillium notatum and the cephalothene is produced from the Cephalosporium species. They both are the gram-positive. Basically, they are the fungi. Mode of action, they inhibit the peptidoglycan synthesis and the murin assembly. जैसे कि मैंने कहा कि वो ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट कर देता है तो म्यूरिन की असेंबली नहीं होती है because bacterial cell wall is made up from the heteropolysaccharide and that heteropolysaccharide is there are the two kind of the sugars they are present in bacterial cell wall. One is the N-acetylmuramic acid and another one is the N-acetylglucosamine. Another chemical drug is the tetracycline. Example is tetracycline. Biological source that is produced from the Streptomyces species. They are either gram positive or the gram negative. They inhibit the protein synthesis. Okay, that means they inhibit the translation. There are the semi-synthetic beta-lactams such as the ampicillin and the amoxicillin. They are the gram positive and the gram negative. They produce by this gram positive and the gram negative bacteria. Inhibit steps in cell wall synthesis and the murin assembly like the penicillin. Now, bioavailability. In pharmacology, bioavailability, B or it is designated as F, is a subcategory of absorption and is the fraction of an administered drug that reach the systemic circulation. Now, what is bioavailability? कि जो भी ड्रग हमने लिया उसमें से असिमिलेट कितना हुआ, एब्जॉर्ब कितना हुआ और एब्जॉर्ब करने के बाद कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद कितना फ्रैक्शन ये कहा जा रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड टू इंट्रावेनस, जैसे कि इंजेक्शन है, इंजेक्शन हमें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर दिया जाता है. डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन हमें ब्लड के अंदर डालता है, तो वो पूरा का पूरा ड्रग कहां पर जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाता है. तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी कहेंगे, तो 100%, क्योंकि जितना ड्रग था सारा का सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर किया. लेकिन अगर कोई ड्रग हम ओरली लेते तो फिर वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाकर फिर वो डाइल्यूट होगा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में से क्या पता पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो पाए नहीं हो पाए. सपोज मान लेते किसी ड्रग का सिर्फ 70% ही एब्जॉर्ब हो पाए, 30% हो ही नहीं पाए, तो ऐसे में फिर उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी, तो हम कहेंगे कि 70% होगी. सो कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का और वो एब्जॉर्ब करने के बाद कितना फ्रैक्शन ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर रहा है, उसे हम उसे क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं. Then the minimum inhibitory concentration. We must find the minimum inhibitory concentration of that particular drug. कि कितने अमाउंट के अंदर ये वो पर्टिकुलर पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे कम देकर नहीं चलेगा क्योंकि ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी, और अगर उससे ज्यादा दे देंगे, हर बार उससे ज्यादा देते रहेंगे तो एक बार ऐसा होगा कि बैक्टीरिया उसके लिए क्या कर लेगा, रेजिस्टेंट फॉर्म कर लेगा. तो हमें ना तो ज्यादा देना है, नहीं कम देना है, मिनिमम जितना उसको इनहिबिट करने के लिए लगेगा उतना हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो उसे फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और एमआईसी कैसे, वही डेफिनेशन के अंदर है. इन माइक्रोबायोलॉजी द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन is the lowest concentration of a chemical, usually a drug, which prevent visible growth of a bacterium. MIC depends on the microorganism, the affected human being, and the antibiotic itself. It is often expressed in micrograms per liter. Here the unit is there, microgram per liter के अंदर बताया जाता है, और even in milligram per liter also. Another term is the bactericidal concentration. MIC के अंदर हम ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और MBC के अंदर हम बैक्टीरिया को टोटली किल करने की कोशिश करते हैं. हम उसको इनहिबिट नहीं कर रहे, वहां पर हम ग्रोथ को इनहिबिट करते थे. मतलब 10 ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो अगर ड्रग की ट्रीटमेंट देते तो वो 10 ही रहेंगे, ना तो वो बढ़ेंगे और ना ही वो कम होंगे. लेकिन MBC बैक्टीरियाइडल कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम बैक्टीरियाइडल कंसंट्रेशन. हम यहाँ पर 10 अगर है तो वो ड्रग की ट्रीटमेंट देने के बाद वो तो बढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन 10 से भी कम हो जाएंगे तो 0 हो जानी चाहिए. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द MIC एंड द MBC. Here is the
फिगर ऑफ MIC एंड द MAC। सो सपोज मान लेते कि यहाँ पर हमने अलग अलग कंसंट्रेशन के अंदर ड्रग लिया है, यहाँ पर 0 है तो ये हमारा कंट्रोल होगा। यहाँ पर ये ट्यूब के अंदर हमने 0.25 माइक्रोग्राम पर ml का कंसंट्रेशन लिया है एंटीबायोटिक का, यहाँ पर हमने 0.5 माइक्रोग्राम पर ml का कंसंट्रेशन लिया है एंटीबायोटिक का, यहाँ पे हमने 1 माइक्रोग्राम पर ml लिया है, यहाँ पर 2 माइक्रोग्राम, यहाँ पर 4 माइक्रोग्राम, यहाँ पर 8 माइक्रोग्राम। तो MIC सिर्फ ट्यूब के अंदर की जाती है। तो शुरुआती दौर पर हम सिर्फ ट्यूब का देख रहे हैं, आप ये नीचे की डायग्राम मत देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ट्यूब देख रहे हैं। तो ट्यूब के अंदर आपको किस जगह पर, ठीक है, ग्रोथ दिखना बंद हो गई। तो सपोज मान लेते हैं कि 2 के कंसंट्रेशन पे हमें सबसे कम ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है। तो इसका MIC कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोग्राम पर ml हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसकी MBC फाइंड आउट करनी है, बैक्टीरियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, देखिए फर्क समझने की कोशिश करें कि MIC क्या है, कि मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, कि जहां पर ग्रोथ इनिबिट होना चाहिए, हम किल नहीं कर रहे, इसलिए वहां पर ग्रोथ थोड़ी बहुत होगी जरूर, ठीक है। जिसके आगे ग्रोथ नहीं होगी वो कंसंट्रेशन हमें नहीं लेना है। सपोज 4 के अंदर ग्रोथ नहीं है तो फिर वो थोड़ी हुआ, उसमें तो सबके सब मर गए, ठीक है। तो हमें वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है जहां पर मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन हो, जहां पर ग्रोथ थोड़ी तो भी दिखाई दे, ठीक है। तो सपोज मान लेते कि यहां से हमारा MIC 2 हुआ, अब आपको उसका MBC फाइंड आउट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं कि आखिरी के जो 3 से 4 डाइल्यूशन होते हैं MIC के, उन्हें प्लेट आउट करते हैं, उन्हें सॉलिड मीडियम पर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, आखिरी के सपोज ये 3 ले लिए, क्योंकि इधर तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, तो मैंने 1 लिया, 2 लिया और 4 लिया। तो 1 के अंदर मेरे को ग्रोथ दिखाई दे रही, 2 के अंदर भी दिखाई दे रही, लेकिन 4 के अंदर जैसे ही जाता हूं तो 4 के अंदर एक भी नहीं है। इसका मतलब इसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है, तो सबके सब मर गए। तो यहीं पे मर गए, तो ये उसका क्या हुआ, मिनिमम बैक्टीरियल कंसंट्रेशन, कि इस कंसंट्रेशन में सारे के सारे मर जाते हैं। और इस कंसंट्रेशन पे हम ये कह सकते हैं कि वो इनिबिट हो जाती है ग्रोथ। क्योंकि इधर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलोनीज है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही कॉलोनीज है, ठीक है। देखिए इतने इस पे वो इनिबिट हो जाते हैं, यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, MIC कहेंगे। और जहां पर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे, MBC कहेंगे, दैट इज मिनिमम बैक्टीरियल कंसंट्रेशन। LD50 is the amount of material given all at once which cause the death of the 50 of a group of a test animal। LD50 वो होता है कि अगर वो पर्टिकुलर डोज देते हैं तो 50% एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, LD50 का डोज कहते हैं। तो LD50 इज वन वे टू मेजर द शॉर्ट टर्म पॉइजनिंग ऑफ पोटेंशियल और द एक्यूट टॉक्सिसिटी सिवेरिटी चेक करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट कैन यूज मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स बट मोस्ट ऑफ द ऑफन they are testing onto a rat and the mice। Then there are the some group which shows the antagonistic reaction or the antagonism। Now what is antagonism? The interacting drug have a opposite action। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एक ही साइड पर दो अलग अलग तरीके के ऑपोजिट एक्शन बताते हैं, जैसे कि एसिटिल कोलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, ठीक है। जो कि एसिटिल कोलिन जो है हार्ट पर अलग इफेक्ट बताता है, नॉर एड्रेनलिन हार्ट पर अलग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। एक हार्ट रेट को बढ़ा देता है तो दूसरा हार्ट रेट को कम कर देता है, ठीक है। हालांकि दोनों की एक्शन एक ही जगह पर होने वाली है। सिनर्जिज्म, इट इज द एनहांसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय अनदर ड्रग। यहाँ पर ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, एक ड्रग यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ में अगर दूसरा ड्रग यूज कर लेंगे तो दोनों का इफेक्ट मिलकर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन कहते हैं बिटवीन द ट्रू ड्रग्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। थैंक यू।